What is the ADC exam? Can you please give us brief about it? Yes. So basically, if any overseas qualified dentist want to practice in Australia, they need to write Australian Dental Council exam. How can someone apply for it? Yeah. So there is an Australian Dental Council website. You need to make your own account. You need to upload all the documents, and academically help basically in this process. No need to worry. So, hello, sir. First of all, I would like to welcome you, and I'm really grateful that you took out the time for my channel. And would you like to introduce yourself a little bit? Thank you, Shweta. My name is Dr. Akram. So I'm basically a lecturer living and working in Australia, and I'm helping last 8 to 10 years, healthcare professionals to want to migrate to Australia. Whether you are a medical doctor, dentist, pharmacist, nurse, optometrist, any healthcare professional want to work abroad. So I'm helping last several years in this journey. Okay, sir. So, sir, our first question is, what is the ADC exam? Can you please give us brief about it? Yes. So basically, if any overseas qualified dentist want to practice in Australia, they need to write Australian Dental Council exam. And it is a two-part exam. One is the online exam you can give in your home country. It is a MCQ-based exam. And once you pass this exam, then you need to write a clinical exam in Australia. If you can clear both exams, then you can practice in Australia as a registered dentist. Okay, sir. So, who can take the ADC exam? Yeah, so this is very good question, because बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कि MDS करना पड़ेगा एग्जाम लिखने के लिए, क्या स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है या नहीं, राइट? तो इट जस्ट नीड बैचलर डिग्री. तो आपने अगर BDS किया हुआ है, जस्ट एनफ टू राइट दिस एग्जाम. द ओनली कंडीशन दैट यू हैव नीड टू कंप्लीट योर डिग्री and you must be a registered dentist in your state dental council. मतलब आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, and that's it. No work experience required to write this exam. Okay, sir. So, how many attempts can a person give for this exam? Yeah, so this is a unlimited attempt to write this exam, but there is some condition. Once you pass part 1 exam, ADC part 1 exam, within 3 years you need to clear ADC part 2 exam. So if you are not able to clear in these 3 years, you need to rewrite that part 1. This is the only condition, but आपको as many times you can write this exam, and each time you need to pay the government fees. That's it. Okay, sir. So, how can someone apply for it? Yeah, so there is an Australian Dental Council website. You need to make your own account. You need to upload all the documents, and academically help basically in this process. No need to worry. This is we call document verification. They want to check your degree, your mark sheet, and your registration in your home country, your passport, and your good standing certificate. Also your dental council, and also if you have a 1 to 2, you also need a letter of recommendation from your professor, or if you are practicing dentist, तो वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से वो लेटर लेना होगा. These are the documents you need to submit, and it will take around 2 months to complete the step 1 process. Then you can book the exam and can write this exam. And this exam they conduct yearly 2 times. तो मार्च एंड सितंबर के अंदर ये एग्जाम आप दे सकते हो. Okay, sir. So the next question is, what is the structure and exam pattern of the ADC exam, and does academically give any job assistance also? Yeah. So in general, this is a MCQ based exam. So there will be a several direct question भी आ सकते हैं आपको, but जितना भी syllabus आएगा, whatever you study in BDS, उसी syllabus में से ये आना है, right? And sometimes they will also give you some case studies, and based on that they will ask you some answer, like होंगे MCQ जी, आंसर आपको MCQ ही करना होगा, कि ऐसे क्विज नहीं आता ADC के अंदर, बट कुछ केस सिनेरियोज, केस बेस्ड स्टडीज आएंगी, एंड मोस्टली दे फोकस ऑन द clinical side. Okay, sir. Okay, so how many exam parts are there? Yes, and we provide basically coaching for this exam for 4 months, live classes from Australia, so you can pass. So we will help you to complete your A to Z process, like your documentation process. We'll provide you the coaching for ADC. Again, for English also, you need to pass like PT, OET, or IELTS. Skill coaching हम लोग देंगे आपको. And then once you pass the exam, we'll also guide you
in your CV need to change as per the Australian standard, your cover letter, how to write a cover letter for each job, how to apply for job, what are the websites you need to apply, and is there any consultancy also helping to get a job, all those things we will help you. Okay, sir. So that was quite helpful. So our next question is, how many exam parts are there for the ADC exam? You mean the passing rate percentage? No, sir. How many exam parts are there for the ADC exam? Okay. In how many parts? So that is basically in general for any healthcare practitioner, whether you are medical doctor, dentist, pharmacist, सबके लिए 2 एग्जाम है सबके लिए. 1 एग्जाम यू कैन राइट इन योर होम कंट्री एंड पार्ट 2 क्लिनिकल एग्जाम है और ऑस्ट्री एग्जाम है, यू नीड टू बी इन ऑस्ट्रेलिया. 2 पार्ट होते हैं एडीसी के. एडीसी पार्ट 1 जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा वो आप अपने घर पे रह के दे सकते हैं इंडिया में रह के, एंड देन पार्ट 2 एग्जाम जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको देना होगा. Okay, sir. So what is the average salary of a dentist in Australia? Yeah, this is a very good question. So recently there was one article. So there is one, a patient, and he went in Australia. उसको $100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उसको बिल दिया गया था. ठीक है, मैं आपको भेज भी दूंगा लिंक, तो आप लगा देना यहाँ पर. तो उसमें क्या हुआ, उसको किसी ने बताया कि इंडिया में चले जाओ, बहुत सस्ता होता है इंडिया में जो डेंटिस्ट्री का जो ट्रीटमेंट है. वो इंडिया हैदराबाद में है, यहाँ पर वो 4 स्टार होटल में रहा, पूरा ट्रीटमेंट उसने कराया, पूरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया पूरा घूमा. वो आने जाने में उसको $15,000 खर्च हुआ, मतलब उसके 7 लाख खर्चा हुआ. उसने 85,000 उसने सेव किया. मतलब डेंटिस्ट्री बहुत ही कॉस्टली होती है ऑस्ट्रेलिया में. तो जो सैलरी है डेंटिस्ट का बहुत ही हाई है और हाई डिमांड डेंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. तो ऑन एन एवरेज जो डेंटिस्ट कैन मेक अप टू 1 CR easily can make as a dentist in Australia. 1 to 1. Okay, sir. 1.5 CR, yeah. Okay, so that will be quite motivating for a lot of dentists in India, especially because here the salaries are very less. I can confirm it. Yes, you are right. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमने अभी ये डिग्री कर लिया, जिस डिग्री का कोई स्कोप नहीं है, और हमने गलत डिग्री कर लिया. जैसे बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट भी करते रहते हैं. तो नाउ दिस इज नॉट ट्रू. नाउ यू ऑलरेडी ये डेंटिस्ट, राइट? तो अब आपको ये देखना है कि व्हाट यू कैन डू विद दिस डेंटिस्ट्री डिग्री. आपको फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं. पॉजिटिव हमेशा रहें अपनी, जो भी आपने अब तो ऑलरेडी डिग्री कर लिया, राइट? तो उसकी बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया या कोई भी विदेश में जाएंगे तो वो बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी. आपको डेफिनेटली किसी न किसी कंट्री का एग्जाम क्रैक करके बाहर ट्राई करना चाहिए. मैं बस ये बोलना चाहूँगा आपको. Yes, sir. Okay. So, sir, the next question is English proficiency required for the initial assessment? And what is the minimum score you need to qualify for the exam? Yes. तो इनिशियल असेसमेंट के लिए इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड. आप वो एग्जाम के बाद दे सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि एडीसी का वैलिडिटी इज फॉर 3 years, बट इंग्लिश का जो वैलिडिटी होता है वो होता है 2 years का ही ओनली. तो आप वंस यू पास एडीसी यू कैन गिव दिस इंग्लिश टेस्ट. ठीक है, आप उसके बाद दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो. इज अप टू यू, देयर इज नो सच कंडीशन. Okay, sir. And what is the minimum score you need to qualify the exam? या तो इसमें बेसिकली जो एप्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश चाहिए होती है, वहाँ पर IELTS एकेडमिक यू नीड टू चूज. उसमें 7 बैंड इंडिविजुअल और ओवरऑल 7 चाहिए होगा. और अगर आप पीटी भी जाते हो 65 ईच इन पीटी चाहिए. अगर आप OET भी जाते हो तो B बैंड उसमें चाहिए होगा, B ग्रेड जो है जो OET के अंदर. Okay, sir. So the next question is, can a dentist from India take the ADC exam? Yes. And can the initial assessment and ADC be completed from India? Basically, जो 3 स्टेप हैं फर्स्ट के, दे कैन कंप्लीट इन योर होम कंट्री इंडिया में रह के. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आप कर सकते हो. नंबर 2 ADC एग्जाम भी आप इंडिया में सकते हो. नंबर 3 इंग्लिश भी आप यहाँ देख सकते हो. तो ये तीनों स्टेप आप यहाँ करने के बाद जो फाइनल स्टेप होगा उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है. Okay, sir. So how can a person get a visa after clearing it? Yeah, once you pass this exam and you will get, then you can start looking at jobs. We will guide you कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपका CV, कवर लेटर, कैसे जॉब वहाँ मिलती है, कौन कौन से क्वेश्चन दे में आस्क यू इन द इंटरव्यू. वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द जॉब. Okay, sir. So how can a person get
The next question is, how does Academically help dentists? तो एकेडमिकली इज वन स्टॉप सोल्यूशन. तो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग कराएंगे, आपको कोचिंग देंगे एडीसी का, वो हम लोग कराएंगे, फिर इंग्लिश का कोचिंग भी हम लोग देंगे ना. तो ईच एंड एवरीथिंग एकेडमिकली ही आपका काम करेगा. यू नो नीड टू गो हियर एंड देयर. तो वी आर बेसिकली ये पर्सनली ये एजुकेशन कंपनी, बट वी आल्सो हेल्प ईच एंड एवरीथिंग. तो आई एम बेस्ड इन सिडनी. अभी तो बेसिकली आई एम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट फ्रॉम देहरादून बिकॉज आई केम to have some event in Chandigarh and Hyderabad and Pune and Kochi. Yes, तो हम लोग पूरा गाइड करते हैं आपको each and everything, so no need to worry about this. Okay, sir. So what are the resources offered by Academically for ADC preparation? तो हम लोग बेसिकली लाइव क्लास लेते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड प्लस मॉक टेस्ट फॉर द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द ईच मॉड्यूल. ओके, तो आपको जर्नी एंटायर जर्नी यू विल आल्सो नो के वी आल्सो यूज एआई बेस्ड मॉक टेस्ट, ब्रांड टेस्ट. तो जैसे कि एग्जाम में आप बैठेंगे सेम लाइक यू नीड टू अटेंड दिस टेस्ट एंड दिस टेस्ट will give you the clear picture कि कौन से एरिया में आपका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है. जो वीक पॉइंट होगा फिर से यू कैन डिस्कस विद आवर फैकल्टी कैसे हाउ यू कैन इम्प्रूव बिफोर यू आर गोइंग फॉर द फाइनल एग्जाम. ओके सर. सो सर एक पर्सनल क्वेश्चन मुझे पूछना था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एडीसी को क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस हाउ डिफिकल्ट इट इज कि एक एवरेज डेंटिस्ट इंडिया में बैठ के मतलब सोच सकता है कि आई कैन ऑल्सो क्रैक इट एंड आई कैन ऑल्सो प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया. इफ यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया में लगता है 1/3 जो डेंटिस्ट हैं दे आर ओवरसीज क्वालिफाइड, मतलब दे आर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, राइट. और तो हमारे नियर बाई के बहुत सारे जो हमारे कंट्रीज हैं इंडियन ही, मैक्सिमम इंडियन ही आपको मिलेंगे. तो ये सारे लोग एग्जाम पास करके वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. तो इतना टफ है, ऐसा नहीं कोई इम्पॉसिबल एग्जाम है तो उसका रीज़न ये है मेरे हिसाब से पार्ट 1 तो इजी एग्जाम है, पार्ट 2 थोड़ा सा टफ इसलिए होता है उसमें ऑस्की एग्जाम पूछता है. तो इंडिया का जो डेंटिस्ट्री है वहाँ पर भी ऑस्की को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है. तो इसलिए फॉरेन कंट्रीज में होता है भैया बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है, हम लोग को समझ भी नहीं आता वो कैसे करना है. उसका भी हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है उसे. उसका भी सेपरेटली हम लोग आपको कोचिंग देंगे पार्ट 2 का भी. तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस. एंड आई कैन से कि जितना आप नीट पीजी यहाँ पर आप देते हो उसी टाइप का लेवल है, उसमें और लेवल नीचे ही कर लो उसको अगर पार्ट 1 के लिए तो. ओके सर. सो फाइनली हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डेंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया? तो दिस इज लाइक इंडिविजुअल के ऊपर कितना टाइम लगेगा, बिकॉज जैसे हम लोग तो 4 मंथ कोचिंग कराएंगे, देन यू नीड टू सिट इन द एग्जाम. एग्जाम भी एक समय 2 ही बार होता है, राइट. तो इसमें मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर तो लग जाएगा इन द एंटायर प्रोसेस अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप करोगे तो. ओके सर. एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल. या एंड प्लीज आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जॉब को छोड़ के डेंटिस्ट्री का वो कुछ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, कुछ कर नहीं रहे. प्लीज सीवी में अपने कभी भी कोई गैप ना छोड़ें. वॉट एवर रीज़न, अगर आपने कुछ ब्रेक भी लिया हुआ है तो आप वहाँ मेंशन करें वाई यू टेक द ब्रेक और कुछ ना कुछ पार्ट टाइम डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस करते रहें और साथ में एग्जाम को पास करें. देन देयर इज अ वेरी हाई चांस टू गेट जॉब. दे विल आल्सो वांट टू सी इन योर सीवी रिसेंसी ऑफ वर्क. आपने एग्जाम पास किया, करंट में आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू गेट ए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया. ओके सर. So that was really helpful and thank you so much sir for giving me the time. My subscribers will be really grateful to you and अगर कोई भी किसी को डाउट पूछना होगा तो I will tell them to contact you. All the links will be provided in the description and your personal Instagram ID and Academically's ID will also be provided. So again, thank you so much sir. Thank you Shweta. Thank you so much. Bye.